Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to cover another very important topic of the novel To the Lighthouse, written by Virginia Woolf. The question is of symbolism. ये अक्सर पेपर्स में आ जाता है and this is relating to the symbols that are being used by Virginia Woolf in the novel To the Lighthouse. Before watching this video, do subscribe my channel and also press the bell icon for notifications. Discuss the use of symbols. Adeline Virginia Woolf, 1882 to 1941, was an English writer who is considered one of the foremost modernists of the 20th century. Virginia Woolf का ताल्लुक 20वीं सदी से था और ये foremost modernists में से एक थी and a pioneer in the use of stream of consciousness as a narrative device. ये उन writers में से पहली एक थी जिसने सबसे पहले stream of consciousness की device यूज़ की थी. Born in an affluent household in Kingston, London, she attended the King's College, London, and was acquainted with the early reformers of women's higher education. Woolf was a central figure in the literary society. वो एक central figure थी इंग्लैंड की लिटरेरी सोसाइटी की. Her works are widely read all over the world. पूरी दुनिया में इसके जो काम हैं मशहूर हैं. इसकी writings. She suffered from severe bouts of mental illness throughout her life. लेकिन उसको बहुत डिप्रेशन रहता था और मेंटल इलनेस का शिकार थी. And took her own life by drowning in 1941 at the age of 59. और 59 की एज में 1941 में उसने अपनी जान खुद ले ली by drowning herself in the water. To the Lighthouse is a marvelous piece of writing penned by Virginia Woolf. एक बहुत बेहतरीन तहरीर है जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है. It was published in 1927 and became a popular novel using a new technique of stream of consciousness. ये 1927 में पब्लिश किया गया था और ये पॉपुलर नावल साबित हुआ था क्योंकि इस नावल में एक नई टेक्निक यूज़ की गई थी जिसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है. इसका क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने फेसबुक ग्रुप पे भी, आप वहाँ से देख लीजिएगा. मेरे ब्लॉग पे भी इसका क्वेश्चन मौजूद है इन द हैंड रिटन नोट. द स्टोरी टेक्स प्लेस ऑन द आइजल ऑफ स्काई जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1. कहानी का आगाज़ एक जगह से हुआ था जिसका नाम आइजल ऑफ स्काई था और ये वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की बात है. द रैमसे फैमिली हैव अ हॉलीडे होम overlooking the sea and the distant lighthouse. The Ramsay family का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है. वो यहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने आते थे. उनका एक हॉलीडे होम था इधर जो कि समंदर के किनारे था और वहाँ पे एक लाइट हाउस भी मौजूद था. During the summer, the family, which consists of Mr. and Mrs. Ramsay with their 8 children, invites their friends and colleagues to stay. मिस्टर एंड मिसेस के 8 बच्चे थे और वो अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को इनवाइट करते थे वहाँ रहने के लिए. एज अ बीइंग मॉडर्निस्ट राइटर, वर्जीनिया वुल्फ यूज्ड मैनी सिम्बल्स इन हर वर्क. मॉडर्निस्ट राइटर थी, इस वजह से वो बहुत सिम्बल्स इस्तेमाल करती थी अपने कामों में. टू द लाइट हाउस इज़ फुल ऑफ सिम्बल्स विच हैव बीन इंटरप्रेटेड बाय वेरियस क्रिटिक्स. और ये सिम्बल से भरपूर नावल है जो कि इंटरप्रेट किया गया है. मुख्तलिफ वेरियस क्रिटिक्स ने इसको इंटरप्रेट किया. Written from multiple perspectives and shifting between times and characters with poetic grace, To the Lighthouse is not concerned with ordinary storytelling. जी, To the Lighthouse जो है वो कोई आम स्टोरी टेलिंग नहीं है बल्कि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से लिखा गया है. इसमें टाइम शिफ्ट्स भी दिखाए गए हैं और करेक्टर्स की पोएटिक ग्रेस भी. Rather through integrate symbolic web, it reads the mind. यहाँ पे सिम्बल्स का वेब बना हुआ है पूरे नावल पे. And recounts the passage of multiple experiences of different characters in the novel. और characters जिन experiences से गुजरते हैं उनको recount किया गया है. The key symbols into the lighthouse are, ये आप नोट कर लीजिए, the sea, the lighthouse, the window, Lily's painting, and the personalities of Mrs. Ramsay and Mr. Ramsay. They are all woven together along with many other less important ones. ये आपस में इनकी एक गैदरिंग दिखाई गई है या कह सकते हैं यूनिटी दिखाई गई है. इनटू अ सेंट्रल मीनिंग. हर चीज़ की एक सेंट्रल फोर्स होती है. तो इसी तरह मिस्टर और मिसेस रैमसे की फैमिली भी एक सेंट्रल फोर्स की अहमियत रखती थी और जिसमें बेसिकली मिसेस रैमसे का किरदार एक बिल्कुल न्यूक्लियस के मानंद था जो सबको
आपस में जोड़ के रखती थी, which suggest Mrs. Woolf's conception of life and reality. वर्जीनिया वुल्फ यहाँ पे अपना सारा जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था वो यहाँ पे इस नावल में उसका कंसेप्शन ऑफ लाइफ पता चलता है कि उसकी क्या सोच थी ज़िंदगी के बारे में और हकीकत के बारे में, वो क्या सोचती है. सिम्बॉलिज्म कैन बी डिफाइंड एज, ये आप नोट कर लीजिए सिम्बॉलिज्म की डेफिनेशन. Symbolism is the use of symbols to signify ideas and qualities by giving them symbolic meaning. Symbolism symbols का इस्तेमाल है जिससे ideas या qualities को signify किया जाता है, उनको symbolic meaning देके. That are different from their literal sense, यानी वो symbolic meanings different होते हैं उसके literal sense से. The sea permeates thoughts, reflections and imagery, not surprisingly, as the sea can be visualized and heard throughout the novel. इतनी खूबसूरत इमेजरी दिखाई गई है सी की कि उसको विजुलाइज भी किया जा सकता है और पूरे नावल में जैसे हम उसको सुन सकते हैं. इट सिम्बलाइजेज द इटर्नल फ्लक्स ऑफ टाइम एंड लाइफ, कि ये वक्त जो है वो हमेशा के लिए है, ज़िंदगी यानी रवां दवा है, ये बेसिकली दिखाया गया है और सी उसको सिम्बलाइज करता है. द सी कलर्स द कन्वर्जेशंस ऑफ रैम्जे फैमिली. Mrs. Ramsay speaks of waves, mountains, high seabirds and butterflies are among the objects of Ramsay children love to collect and talk about in their attic bedrooms. सी बर्ड्स के बारे में बात करते थे, माउंटेन्स के बारे में, बटरफ्लाइज के बारे में. ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि रैमसे चिल्ड्रन को पसंद थी और वो कलेक्ट भी करते थे और उनके बेडरूम्स में इनके मुतालिक बात की जाती थी. अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक टू द लाइफ of the Ramsay family is provided by the monotonous fall of the waves. वो जो लहरों की आवाज़ थी वो बेसिकली रैम्जे फैमिली की ज़िंदगी का बैकग्राउंड म्यूज़िक था. To Mrs. Ramsay, at one moment it sounds soothing and consoling like a cradle song. Mrs. Ramsay को वो बहुत रिलैक्सिंग लगता था और उसकी आवाज़ उनको कंसोल करती थी जैसे क्रैडल सॉन्ग होता है. And at some other moments it is like a ghostly roll of drums, remorselessly beating a warning of death. लेकिन किसी मौके पे जब बहुत तूफ़ान आ रहा होता है, समंदरी तूफ़ान, तो वही आवाज़ ड्रम्स की मानंद हो जाती है, जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो बहुत ज़ोर ज़ोर से और वार्निंग दे रहा हो डेथ की. The sea surrounds the island on which the whole action takes place. It suggests both the human race in general and the individual's personality. इस आइलैंड के चारों तरफ समंदर है और ये सजेस्ट करता है ह्यूमन रेस को जनरली और इंडिविजुअल पर्सनालिटी को भी. द वेव्स आर द सिंबल ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइफ. जो समंदर की लहरें आ रही हैं और जा रही हैं वो ज़िंदगी की रवानी को बयान कर रही हैं. Woolf describes the sea lovingly and beautifully, but her most evocative depictions of it point to its violence. As a source that brings destruction, has the power to decimate islands, and as Mrs. Ramsay reflects, eats away the ground we stand on. कि यहाँ पे वुल्फ ने बहुत खूबसूरती से सी को बयान किया है, लेकिन वो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स को भी एम्फसाइज़ करती है कि ये हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, मिटा देता है. जिस तरह के मिसेस रैमसे ये बात कहती हैं कि वो उस ग्राउंड को भी खा जाता है जिस पे हम खड़े होते हैं. The sea is a powerful reminder of the impermanence and delicacy of human life and accomplishments. कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो impermanent है और ख़त्म हो जाने वाली है, delicate है, यानी किसी वक्त भी इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है और उसकी accomplishments भी. The lighthouse is the most important symbol in the novel, as it is also included in the title. Lighthouse सबसे ज़रूरी symbol है इस नावल का. The lighthouse is a mystery, but it also concerns day-to-day living. ये एक mystery है लेकिन ये day-to-day living से भी concerned है. It is at once distant and close at hand. ये दूर भी है और पास भी. It is man-made, something permanent and enduring that man has built in the flux of time to guide and control those at the mercy of destructive forces. ये man-made है और permanent है,
जी, इंसान ने ज़रूरत के तहत बनाया था और ये गाइड करता है और उन डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को कंट्रोल करता है जो कि तबाह कर देती हैं उन लोगों को जो कि रास्ता भटक जाते हैं समंदर में। मैन टर्न्स इट्स लाइट, इंसान इसकी लाइट इस्तेमाल करता है। इट सेंड्स इट्स बीम ओवर द डार्क वाटर्स टू दोज ऑन द आइलैंड एंड इस्टेब्लिशेस कम्युनिकेशन विद दैम। जो अंधेरे में रास्ता भटक जाते हैं समंदर में, उनको वो लाइट भेज के कम्युनिकेशन डेवलप करता है उनसे। इफ़ वी अप्लाई करेक्टर ऑफ द नावल, ईच करेक्टर होल्ड्स डिफरेंट सजेशन ऑफ द लाइट हाउस। अगर हम हर करेक्टर को अप्लाई करें नावल के, तो हमें हर करेक्टर का डिफरेंट सजेशन मिलेगा लाइट हाउस से मतलब। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मिस्टर रैमजे, ही सीज़ द लाइट हाउस एज अ सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड कम्फर्ट। उनको ये लाइट हाउस एक सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी और कंफर्ट महसूस होता था। इट स्टैंड्स एज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ ओनरशिप। टू मिसेस रैमजे, द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द लाइट हाउस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट ट्रुथ लाइज इन द साइकिल्स दैट गवर्न्स लाइफ। कि सच्चाई उन साइकिल्स में है जो कि लाइफ गवर्न करती है। For Lily Briscoe, the lighthouse becomes a sort of fixation during her final artistic vision. उसके लिए वो एक fixation की तरह था। She is watching Mr. Ramsay's boat reached at the lighthouse as she approaches the solution of how to finish her painting. जब वो देख रही होती है कि मिस्टर रैमसे जो है उनकी बोट पहुंच चुकी है लाइट हाउस तक, ये आखिरी सीन के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे फिर उसको सोल्यूशन मिल जाता है कि उसको अपनी पेंटिंग किस तरह से मुकम्मल करनी है। As the lighthouse is difficult to understand, just like that, Lily Briscoe finding the problem to complete the picture of Mr. and Mrs. Ramsay. Finally, the lighthouse had become almost invisible, had melted away into blue haze. जी, लाइट हाउस डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, और बिल्कुल उसी तरह जैसे लिली ब्रिस्को काफ़ी डिफ़िकल्टी उसको आ रही थी अपनी पेंटिंग कंप्लीट करने में, लेकिन आखिरकार पेंटिंग कंप्लीट हो गई जैसे ही लाइट हाउस डिसअपीयर हुआ। एंड विद दिस शी इज़ फाइनली रिलीव्ड एंड हर पेंटिंग इज़ फिनिश्ड as the lighthouse disappeared and Lily got some idea to finish the painting. Thus, this suggests that the lighthouse is also inspirable to her and she got her vision. यानी उसको अपना vision lighthouse से ही मिला और उसकी painting मुकम्मल हो गई. For James, the lighthouse is also symbolized strongest feelings. उसकी lighthouse से काफ़ी strongest feelings associated थी. At the beginning of the novel, it was ambition of James to go to the lighthouse. नावल की शुरुआत में उसका ये मकसद था कि वो लाइट हाउस विज़िट करेगा। At the end of the novel, they reached at the lighthouse. नावल के आखिर में वो लाइट हाउस पहुँच जाते हैं। Sees that, वो वहाँ जाके देखता है, the lighthouse was then a silvery moist looking tower. उस वक्त वो silvery moist looking tower था with a yellow eye, जो कि वक्त के साथ वो थोड़ा सा बदल गया था। According to David Dax, the lighthouse itself, standing lonely in the midst of the sea, is a symbol of the individual who is at once a unique being and a part of the flux of history. जी, डेविड डैक्स का कोट आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। वो कहता है कि लाइट हाउस अपने आप में एक ताकत है जो कि वो अकेला खड़ा हुआ है समंदर के दरमियान, और वो एक इंडिविजुअल को सिंबलाइज करता है जो कि यूनिक भी है और वो हिस्ट्री का एक हिस्सा है। To reach the lighthouse is in a sense to make a contact with truth outside oneself, to surrender the uniqueness of one's ego to an impersonal reality. ये अपने ईगोज़ को ख़त्म करते हुए और ट्रुथ के साथ आप कांटेक्ट में आ जाते हैं, अपनी ज़ात से बाहर निकल जाते हैं, अपनी ज़ात को सरेंडर करके तो ही आप रियलिटी तक पहुंच सकते हैं, ट्रुथ आपको पता चलता है। Mr. Ramsay, who is an egoist, he wins this freedom from self. वो अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकल आता है और फ्रीडम हासिल कर लेता है। यानी पहले वो बहुत ईगो होता है उसकी ज़ात में, और वो एक मखसूस उसका रवैया होता है जिससे वो दूसरों को इरिटेट भी करता होता है, दूसरे उसके ख़ास तौर पे बच्चे उससे तंग होते हैं। लेकिन अब जबकि वो बूढ़ा हो चुका है तो वो इस ईगोइस्टिक एटीट्यूड को तब्दील कर देता है
And it is significant that Virginia Woolf makes Mr. Ramsay escapes from his egoistic preoccupations for the first time just before the boat reaches the lighthouse. इससे पहले कि बोट लाइट हाउस तक पहुंचती, मिस्टर रैमजे जो है वो उनका रवैया तब्दील हो जाता है अपने बच्चों के साथ, और वो हंसी मजाक कर रहे होते हैं उनके साथ, उनका वो ईगोइस्टिक एटीट्यूड बदल जाता है. Indeed, the personal grudges nourished by each of the characters fall away just as they arrive. वो जो उनके आपस में ग्रजेस थे, जो उन्होंने दिलों में बोगस रखा हुआ था, वो ख़त्म हो जाता है जैसे ही वो लाइट हाउस तक पहुँचते हैं. According to few critics, ये आगे क्रिटिक कोट्स आ रहे हैं, इसको ज़रूर आप नोट डाउन करें और पेपर में लिखिएगा. H.K. Russell, The lighthouse is the feminine creative principle. John Bennett calls the alternate light and shadow of the lighthouse as the rhythm of joy and sorrow, understanding and misunderstanding. John Graham, The lighthouse is a vital synthesis of time and eternity, an objective correlative for Mrs. Ramsay's vision. The frequent use of the window. The next symbol is of the window. The frequent use of the window in the novel shows that it has a symbolic value. In all her novels, we see a character standing in the window. वर्जीनिया वुल्फ के जितने भी नावल्स हैं उसमें हमें ज़्यादातर यही नज़र आता है कि एक करैक्टर खड़ा हुआ है विंडो में. वो विंडो कुछ सिम्बोलाइज कर रहा है. गेजिंग एट द स्ट्रीट, एट द स्काई, एट द लैंडस्केप एंड एक्सपीरियंसिंग एज बाय सम catalytic phenomenon the mingling of his own being with the outer reality which he beholds. यानी अपनी ज़ात की सोचों में बहुत डेप्थ तक चले जाना और फिर बाहर की दुनिया से कनेक्ट करना विंडो का एक ख़ास जो है वो ताल्लुक़ है. पूरी स्टोरी से अब वो देखते हैं क्या है. द विंडो इज़ अ स्क्रीन बिटवीन रियलिटी एंड कॉन्शियसनेस. जी, हकीकत और कॉन्शियसनेस के दरमियान एक स्क्रीन है. एंड फाइनली दिस विंडो इज़ द वेरी सिंबल ऑफ द इम्परफेक्शन ऑफ आवर नॉलेज. ये विंडो ये भी सिम्बलाइज़ करती है कि हमारी जो नॉलेज है, जितनी हमारी नो हाउ है, अवेयरनेस है या कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, वो इम्परफेक्ट है. David Dax says there is color symbolism running right through the book. कि to the lighthouse में color symbolism भी नज़र आता है. Red and brown appear to be the colors of individuality and egotism, while blue and green are the colors of impersonality. यहाँ पे colors define करते हैं symbolism को. Red और brown colors जो हैं वो individuality को symbolize कर रहे हैं, जबकि ब्लू और ग्रीन जो है वो इम्पर्सनैलिटी को. मिस्टर रैमसे until the very end of the book is represented as an egoist and his color is red और brown. ठीक है, उनका जो ताल्लुक था रेड और ब्राउन कलर से था और उनको egoistic दिखाया हुआ है. लिली is the impersonal artist and her color is blue. Mrs. Ramsay stands somewhere between and her color is purple. The journey to the lighthouse is a journey from egotism to impersonality. ठीक है, यानी ईगो से निकलकर आप humbleness की तरफ जाएं. The characters in the novel have been carefully arranged in their relation to each other to develop a symbolic pattern. बहुत carefully इन characters को arrange किया गया है ताकि इनका एक दूसरे से ताल्लुक़ दिखाया जा सके और एक symbolic pattern को develop करें. Mrs. Ramsay pervades the whole book. She is above all the creator of matchmaking and her knitting, and the warm comforts by Mrs. Ramsay symbolized by her green shawl. उन्होंने ग्रीन कलर की शॉल पहनी होती है जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि उनमें बहुत वार्मथ है और शी इज़ क्रिएटर ऑफ मैच मेकिंग. वो बड़ा एक लविंग फिगर है. At first, it is draped over the frame of a picture of Madonna and child. Then she puts over her shoulders when she strolls with her husband, and later used to cover up the skulls in the children's bedroom. Mr. Ramsay stands as a symbol of sterile
destructive barriers to relationship. Just as Mrs. Ramsay is evoked in images of fertility and the warmth and comfort of love and harmony with others, Mr. Ramsay is described in images of sterility, hardness and cruelty and of deliberate isolation. यानी उनका रवैया दिखाया कि बहुत सख्त है, ही सीम्स टू बी ऑफ क्रूल नेचर और डेलिबरेटली वो आइसोलेटेड रहना पसंद करते थे. His physical appearance is also symbolic. उनकी physical appearance भी symbolic है, as he stands at the window, lean as a knife, narrow as the blade. वो knife की तरह lean थे और blade की तरह narrow थे. Lily's painting is another and most important symbol of this novel. ये painting और lighthouse काफ़ी important है पूरे नावल में. Lily's painting represents a struggle against gender convention, represented by Charles Tansley's statement that women can't paint or write. लिली की पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है इस नावल का, और लिली की जो ये पेंटिंग है ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रगल को जेंडर कन्वेंशन के अगेंस्ट, के जो कि रिप्रेजेंट किया था चार्ल्स टैंसले की स्टेटमेंट ने कि औरतें जो हैं वो ना पेंट कर सकती हैं और ना लिख सकती हैं. Lily's composition attempts to discover and comprehend Mrs. Ramsay's beauty. वो मिसेस रैमसे की ब्यूटी को अपनी पेंटिंग में कैप्चर करना चाहती थी. Just as Woolf's construction of Mrs. Ramsay's character reflects her attempt to access and portray her own mother. जिस तरह से वुल्फ ने कोशिश की थी कि वो मिसेस रैमसे की सूरत में अपनी मदर को पोर्ट्रे करे. In the end, she decides that her vision depends on balance and synthesis. आखिर में वो यही डिसाइड करती है कि उसका विजन जो है वो बैलेंस पे मुनसर है कि कितना वो बैलेंस कायम कर सकती है. How to bring disparate things in harmony. In this respect, her project mirrors Woolf's writing, which synthesizes the perceptions of her many characters to come to a balanced and truthful portrait of the world. कि किस तरह से बैलेंस कायम किया जाए और मुख्तलिफ़ करैक्टर्स की परसेप्शंस को दिखाया जाए ट्रुथफुल तरीके से. I have had my vision, ये कहा था लिली ब्रिस्को ने नावल के आखिर में. The Ramsays' summer house is also one of the important symbols of novel. This is a crucial symbol to understand. This is a place where all deeds happen. Ramsay's house is a place where Woolf and her characters explain their belief and observation. रैमसे का जो घर था रैमसेस का, वही वो जगह थी जहाँ पे वुल्फ ने और उसके करैक्टर्स ने अपने बिलीफ को और ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया. During her dinner party, Mrs. Ramsay sees her house display her own inner notions of shabbiness and her inability to preserve beauty. जब डिनर पार्टी चल रही होती है तो मिसेस रैमसे अपने घर की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि ये बहुत शेबी हो गया है और ये उसकी इनएबिलिटी है कि वो उसकी खूबसूरती को कायम नहीं रख सकी. द हाउस स्टैंड्स फॉर द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ दोज हु स्टे इन इट. फ्रॉम द डिनर पार्टी टू द जर्नी टू द लाइट हाउस, वुल्फ शोज द हाउस फ्रॉम एवरी एंगल. डिनर पार्टी से लेके लाइट हाउस के सफ़र तक उसने घर को हर एंगल से दिखाया है. In the time passes section, the ravages of war and destruction and the passage of time are reflected in the condition of the house. Time passes का जो सेक्शन है उसमें वॉर की जो तबाहकारी थी या डिस्ट्रक्शन जो थी वो दिखाई है और किस तरह से वक्त तेज़ी से गुजर गया, यानी 10 साल का अरसा दिखाया हुआ है. वो रिफ्लेक्ट करता है घर की कंडीशन देख के, rather than in the emotional development or observable aging of the characters. ना कि वो characters की aging से दिखाती कि किस तरह से वक्त गुजर गया है. Thus, Woolf has mirrored the interior of the characters who inhabit the Ramsay house. उसने characters का इंटीरियर दिखाया है कि वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं जो कि रैमसे के घर में रैमसे हाउस में रहते थे. After her dinner party, Mrs. Ramsay retires upstairs to find the children wide awake, bothered by the boar skull that hangs on the nursery. डिनर पार्टी के बाद मिसेस रैमसे बच्चों के कमरे में ऊपर जाती हैं और वो वहाँ पे देख के थोड़ी सी इरिटेट हो जाती हैं. बोर स्कल वहाँ पे लगा होता है नर्सरी पे. द प्रेजेंस ऑफ द skull acts as a disturbing reminder that death is always at hand.
जैसे ही वो स्कल को देखती हैं तो एक तरह से उनको रिमाइंड होता है कि डेथ जो है कभी भी आ सकती है, और ये एक बड़ा डिस्टर्बिंग रिमाइंडर होता है उनके लिए, इवन और परहैप्स स्पेशली ड्यूरिंग लाइफ्स मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट्स, कि जब इंसान बहुत खुशियाँ मना रहा होता है और उस बहुत ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं उसकी लाइफ में, तो उसी वक्त वो लम्हा होता है कि जब डेथ की एक मोमेंट आती है. This symbol shows ultimate reality of this cruel life that we can die any time. बिल्कुल जी, ये एक क्रूर रियलिटी है ज़िंदगी की. ये हकीकत है कि मौत आनी है और ज़िंदगी का ख़ात्मा होना है. Thus the boar skull symbolizes death and futility of life. जब वो बोर की तरफ देखती है तो इसीलिए अपसेट होती है कि उसको एक डेथ का रिमाइंडर होता है. तो ये बोर स्कल जो है ये सिम्बोलाइज़ कर रहा है डेथ को और लाइफ के ख़ात्मे को, कि लाइफ बेसबात है. द अरेंजमेंट ऑफ फ्रूट्स इन द फ्रूट बास्केट बाय रोज डिपिक्ट्स एन इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ द नावल रिलेटिंग लाइफ एंड डेथ. ये जो अरेंजमेंट था फ्रूट्स का फ्रूट बास्केट में जो कि रोज़ ने किया था, ये डिपिक्ट करता है एक इम्पॉर्टेंट सिंबल को कि किस तरह से लाइफ और डेथ का आपस में ताल्लुक़ है. रोज़ अरेंजेस अ फ्रूट बास्केट फॉर मदर्स डिनर पार्टी. वो अपनी माँ की डिनर पार्टी के लिए वो फ्रूट बास्केट अरेंज करती है. दैट सर्व्स टू ड्रॉ द पार्टी गोअर्स आउट ऑफ देयर प्राइवेट सफरिंग एंड यूनाइट दैम. कि लोग जो कि एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं डिनर पार्टी में, वो एक दूसरे के करीब आ जाएं. Although Augustus Carmichael and Mrs. Ramsay appreciate the arrangement differently, he rips a bloom from it. She refuses to disturb it. The pair is brought harmoniously, if briefly together. The basket testifies both to the frozen quality of beauty that Lily describes and to the beauty's seductive and soothing quality. ऑगस्टस कारमाइकल और मिसेस रैमजे जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में उसकी तारीफ़ करते हैं. वो वहाँ से कोई फल उठा के तारीफ़ करता है, जबकि मिसेस रैमजे उसकी वो जो खूबसूरती होती है फ्रूट बास्केट की उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती. जो बास्केट है वो टेस्टिफाई करती है बोथ फ्रोज़न क्वालिटी को ऑफ ब्यूटी दैट लिली डिस्क्राइब, जो कि लिली डिस्क्राइब करी होती है, और ब्यूटी की सिडक्टिव और सूदिंग क्वालिटी को भी. The absence of fruit basket in third part signifies transitory nature of beauty, art and truth. इस नावल के तीसरे हिस्से में फ्रूट बास्केट मौजूद नहीं होती, जो सिग्निफाई करती है कि जो नेचर की ब्यूटी है वो ट्रांसिटरी है, यानी वक्ती तौर पे है. Finally, to conclude, we can say that To the Lighthouse is a masterpiece of construction through symbolism. Lighthouse एक masterpiece है और ये symbolism के through construct किया गया है. The use of symbols serve the purpose of introspection, self-awareness and openness to the unconsciousness in the novel. The novel has extraordinary meanings due to symbols. बहुत खूबसूरती से symbols के ज़रिए नावल के मीनिंग्स को एक्सपैंड किया गया है. Thus, the symbol of To the Lighthouse reminds us that, regardless of how our emotional seas may become, we need to focus only on the guiding light of the spiritual within us. कि जिस तरह के भी तूफ़ान आ रहे हों, लेकिन हमारे अंदर जो एक लाइट मौजूद होती है वही हमें गाइड करती है. Our inner lighthouse is also a spiritual guide which safely directs us that peaceful life. Woolf has no doubt penned down the most remarkable psychological novel loaded with lots of symbolic meanings. इसमें कोई शक नहीं है कि वुल्फ ने बहुत खूबसूरती से ये साइकोलॉजिकल नावल पेश किया है जिसमें symbolic meanings हैं हर तरह के. So I hope students you have understood the symbolism in To the Lighthouse. और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, you can always comment below. One more thing students, you can add this quote after conclusion. The ocean's roar is music to the soul. इस तरह के आप 2-3 quotes और ऐड कर सकते हैं in the conclusion. इससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा impression पड़ेगा. Till then students, this is your host Samia Omar signing off from MA English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.